Hello students, welcome all of you in the journey to learn Riemann integration. तो इससे पहले अब तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं that what is Riemann integration and when a function is said to be Riemann integrable. And we already know that a function is said to be Riemann integrable if this lower integral is equal to upper integral, and then we simply denote it as equal to integral a to b f dx. And to find the lower integral and upper integral, we find lower sum and upper sum. First of all, lower sum का अगर हम लेकर के चलेंगे least upper bound of the lower sums, so that will be your lower integral, and greatest lower bound of upper sums, that will be our upper integral. And if these two are equal, then the function is said to be Riemann integrable. तो बेटा अब इन्हीं के बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इन दिस वीडियो. नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स ऑन रीमान इंटीग्रेशन. So in case of solving the questions, this least upper bound of lower sums and greatest lower bound of upper sums, for this what we will do is, first of all we will find upper sum and lower sum, and then we will take the limit as n tends to infinity to find this least upper bound of lower sums and greatest lower bound of upper sums. This is because of our theorem on refinement. जो refinement की हमने theorem पढ़ी थी, that no refinement can lower the lower sum and no refinement can raise the upper sum. So as you take the limit as n tends to infinity, so that means we are taking the refinement of the partitions. हम आगे जा रहे हैं और refinements लेते जा रहे हैं, और infinity तक जब आप जाओगे तो उस केस में क्या होगा, तो लोअर सम्स की जो भी आपकी लीस्ट अपर बाउंड होगी वो हमारे पास आ जाएगी इस केस में, इफ़ यू टेक एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. एंड सेम विल बी द केस फॉर द अपर सम्स. इफ यू टेक द लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी विल गेट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द अपर सम्स. दैट मीन्स we will get the upper integral. So let us do some examples now. Examples on Riemann integration. So our first example is to find, first of all we will learn how to find lower sum and upper sum. तो उसी पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर रिफाइनमेंट से क्या होगा, लोअर सम और अपर सम्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो प्रूव करेंगे. यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से हम दिखाएंगे. So we have to compute lower sum and upper sum for the function given is fx is equal to x plus 1, where x belongs to the interval 1, 3, and the partition P भी हमें इसमें इसका given है. Partition P is 1, 2, 3, means we are given only 3 points. ठीक है. And after that we will find lower sum and upper sum for some refinement of this partition. So first of all we have the partition P is equal to 1, 2, 3 here. तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, एक तरह से आपके पास जो x नोड है वो हमारे पास 1 है, x1 is 2 and x2 is 3. That means we have the sub intervals, 2 sub intervals 1, 2 and 2, 3. और अब अगर आपको इसमें लोअर सम और अपर सम निकालना है तो उसके लिए हमें इन इंटरवल्स में फंक्शंस की बाउंड्स निकालनी पड़ेंगी. फंक्शन आपको गिवन है fx इज इक्वल टू x प्लस 1. सो इफ यू टेक फर्स्ट इंटरवल 1, 2, देन सपोज करिए कि लोअर बाउंड जो हम लेके चल रहे हैं m1, दिस इज सपोज योर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन द इंटरवल 1, 2. इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है हमें, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो इसका मतलब जो आपका ये लोअर पॉइंट है 1, इस पर लोअर बाउंड आएगी और अपर वाले पॉइंट पर हमारे पास अपर बाउंड आएगी. सो दैट मीन्स द फंक्शन की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 1, दैट विल बी द लोअर बाउंड. फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1 है, तो इसलिए आपकी लोअर बाउंड हो गई 1 प्लस 1 यानी कि 2. एंड इन द सेम वे जो आपका सेकेंड इंटरवल है 2, 3, उसमें हम सपोज करिए m2 से डिनोट करें इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को. In the interval 2, 3, that will be your 2 plus 1, and so this is 3. बिल्कुल इसी तरीके से हम लीस्ट अपर बाउंड निकाल सकते हैं फंक्शन की. सपोज करिए कि कैपिटल M1 आपकी लीस्ट अपर बाउंड है फंक्शन f की इन द सेम इंटरवल 1, 2,
तो वो वैल्यू हमारी 2 पर आएगी, तो इसलिए कैपिटल M1 यानी कि लीस्ट अपर बाउंड आपका इस इंटरवल में हो गया 3, और सेम वे में हमारे पास M2 आ जाएगा 3 + 1 मीन्स 4, एंड लेंथ ऑफ द इंटरवल्स डेल्टा 1 हमारे पास है, सपोज करिए लेंथ ऑफ द इंटरवल 1 2, सो दैट विल बी 2 - 1 मीन्स 1, and in the same way delta 2 is the length of the interval 2 3 means 3 - 2 is equal to 1, and therefore lower sum अगर हम निकालेंगे तो LFP will be summation MR delta R varies from 1 to n, but यहाँ तो दो ही इंटरवल हैं, so 1 to 2, so you will have M1 delta 1 plus M2 delta 2. You will put the values. M1 is your 2 into length is 1 plus 3 into 1 यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5. So lower sum is 5. In the same way we can find the upper sum UFP. This will be summation capital MR delta R. R varies from 1 to 2 means capital M1 delta 1 plus M2 delta 2. Again you will put the value, so you will get 3 into 1 plus 4 into 1 यानी कि this value comes out to be 7. तो ये तो हमने लोअर सम और अपर सम निकाला, इसी तरह से आप निकाल सकते हो. एंड देन इफ यू कंसीडर द रिफाइनमेंट, कोई भी रिफाइनमेंट आप इस पार्टीशन की ले लीजिए. रिफाइनमेंट के लिए हमें क्या करना है, 1 से 3 के बीच में आपको कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना है. तो सपोज करिए वी कंसीडर दैट P प्राइम इज द, कोई एक पॉइंट बीच में आप कंसीडर कर लीजिए. सपोज 1 2 एंड आप 2.3 2.1 2.5 कुछ भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं. 1 और 2 के बीच में भी आप कोई पॉइंट ले सकते थे. 1.5 हम एक ही पॉइंट ऐड करेंगे, ज़्यादा पॉइंट हम नहीं लेंगे. सपोज करिए कि आप लेते हैं यहाँ पर 2.3, ये डिफरेंट दिखाने के लिए हमने ये ऐसे ले लिया. आप कोई भी पॉइंट इसमें कंसीडर कर सकते हैं. सो दिस इज रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन P. तो अब इसमें हमारे पास कितने इंटरवल्स हैं, नाउ वी हैव 3 सब इंटरवल्स. सो 1 इज योर 1 to 2, कौन कौन से इंटरवल्स हैं, 1 2, देन 2 to 2.3 एंड नेक्स्ट इज 2.3 to 3. सेम वे में जैसे आपने अभी ऊपर केस में निकाला था लोअर सम और अपर सम, हम इन तीनों इंटरवल्स में फंक्शन की लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट. सो सपोज उनको हम M1 M2 और M3 से डिनोट करें. इंटरवल्स आप लिख लेते हैं यहाँ पर. सो पहला इंटरवल आपके पास क्या था, 1 से 2 था. सेकेंड इंटरवल वाज 2 to 2.3 एंड द थर्ड वन इज 2.3 to 3. इन इंटरवल्स में हम फंक्शन की लोअर बाउंड और अपर बाउंड मान लेते हैं, स्मॉल M1 M2 M3 एंड कैपिटल M1 M2 M3, एंड देयरफॉर वी विल हैव स्मॉल M1 इज इक्वल टू, हमारे पास इस फंक्शन की लोअर बाउंड मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1, सो दैट विल बी 1 + 1 x + 1 है. फंक्शन कैसे डिफाइन है आपका, f(x) इज इक्वल टू x + 1, सो दिस विल बी 2. सेम वे में M2 हमारे पास वैल्यू 2 पर आपको लेनी है, सो दिस विल बी 2 + 1 3, एंड M3 विल बी 2.3 + 1, दैट मीन्स 3.3. ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई M1 M2 और M3 की, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था f(x) इज इक्वल टू x + 1. तो इनमें हम बस x की वैल्यू पुट करते हुए चले गए हैं, और हर इंटरवल के लिए आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी निकाल कर लिख लीजिए. डेल्टा 1 फर्स्ट इंटरवल में 2 - 1 है 1, सेकेंड इंटरवल में है 2.3 - 2 यानी कि 0.3, और थर्ड इंटरवल में है 3 - 0.3 3 - 2.3 यानी कि 0.7, and therefore lower sum will be LFP. M1 into delta 1 means 2 into 1 plus M2 into delta 2 means 3 into 0.3, and M3 into delta 3, that means 3.3 multiplied by 0.7. ठीक है, तो ये आपका सॉल्व कर लीजिए. आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट
this one is 2, this comes out to be 0.9 and this comes out to be 2.31. से 0.7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको and then adding we are getting it equal to 5.21. सॉरी ये हमने रिफाइनमेंट पी डैश से डिनोट किया था, दिस इज एल एफ पी डैश. सेम वे में अगर आपको अपर सम निकालना है तो उसके लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी कैपिटल M1, कैपिटल M2 एंड कैपिटल M3 की, क्योंकि यू एफ पी डैश हमारा होगा कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3. तो हम इन सब की वैल्यू इसमें डाल देंगे. कैपिटल M1 हमारे पास आएगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट फर्स्ट इंटरवल में एट एक्स इज इक्वल टू 2. सो दैट विल बी 2 + 1 इज इक्वल टू 3. यहाँ आप अलग से निकाल के दिखा सकते हैं. कैपिटल M1 विल बी 2 + 1 इज 3. कैपिटल M2 इज किस पर आएगी वैल्यू 2 से 2.3 इंटरवल है, सो दिस विल बी 2.3 + 1 and means this is comes out to be equal to 3.3. and in the same way M3 हमारे पास होगा at 3 means 3 + 1 that means 4. तो ये वैल्यूज हम यहाँ डाल दें. so you are getting 3 × 1, then next is 3.3 and multiplied by इस इंटरवल की लेंथ थी हमारे पास 0.3 and then 4 × इंटरवल की लेंथ आपके पास है 0.7. सॉल्व कर लीजिए. सो 3 प्लस नेक्स्ट हमारे पास 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 कितना आ गया हमारे पास 0.99 पॉइंट है बीच में एंड प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे 2.8. सो इनको ऐड कर देते हैं. सो आफ्टर एडिंग दिस यू विल गेट इट एज 6.79. अब देखिए जो हमारे पास लोअर सम आया है दिस एल एफ पी प्राइम इज 5.21. अब अपना पीछे वाला लोअर सम देखिए एल एफ पी कितना था हमारे पास, दिस वाज योर 5 और अभी कितना आ रहा है आपके पास 5.21. तो क्या हुआ जब आपने रिफाइनमेंट ली तो लोअर सम बड़ा हो गया. हमारी थ्योरम यही कहती थी दैट नो रिफाइनमेंट कैन लोअर द लोअर सम. नेक्स्ट नो रिफाइनमेंट कैन रेज द अपर सम. तो अपर सम पहले आपका पीछे देखा था आपने इट वाज 7 एंड हियर इट इज 6.79. so that means कि लोअर सम हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया ये रिजल्ट दैट लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट पी डैश इज ये ग्रेटर हो गया लोअर सम आपका इज ग्रेटर देन लोअर सम ऑफ पार्टीशन P एंड सेम वे में अपर सम के लिए हमारे पास रिजल्ट है अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट P डैश इज स्मॉलर देन अपर सम ऑफ partition P. And this verifies our theorem on refinement also. उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे. इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये to show that this is example show that the function defined on 0, 1 such that कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू 0 if x is rational and 1 if x is irrational. Is not integrable
ये दिखाना है हमें, जबकि ये आपका बाउंडेड फंक्शन है। तो हमें प्रूव करना है बाउंडेड। हमें ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू आपको जो डिफाइन है दैट इज आइदर 0 और 1, मीन्स ओनली टू वैल्यूज, मीन्स इट इज ऑलवेज less than equal to 1 and greater than equal to 0. Therefore function is bounded, but it is not integrable. So this is also an example of a function which is bounded but is not integrable. So to prove this result, we will first of all we will consider a partition P of the interval 0 1 and we will divide it into n equal parts. तो इसके लिए n equal parts में divide करने के लिए आपका जो इंटरवल 0 1 है इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 1 माइनस 0 टोटल लेंथ, और इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। दैट मीन्स वी विल टेक लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल एज 1 अपॉन n. So therefore we will consider the partition P such that we will start with 0 first point and then we go on adding 1 by n, क्योंकि हर इंटरवल की लेंथ आपको 1 by n बनानी है इस तरह से। ये बीच में हम एक rth सब इंटरवल ले लेते हैं एंड इन द लास्ट यू विल हैव n by n यानी कि 1 हो गया आपका ये। सो दिस इज द पार्टीशन P ऑफ द इंटरवल 0 1 एंड द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल ये हमने मानी शो किया है, यानी कि डेल्टा r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 by n एंड द rth सब इंटरवल इज दिस वन r माइनस 1 by n टू r माइनस 1, मीन्स जो आपका x r माइनस 1 से x r जो सब इंटरवल है दिस इज आवर r माइनस 1 by n टू r by n। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या दी हुई है आपको कि फंक्शन की वैल्यू है 0 इफ x इज रैशनल एंड इट इज 1 इफ x इज इरेशनल, एंड वी नो दैट इन एनी इंटरवल वी हैव रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स। कोई भी कितने ही क्लोज हम दो नंबर्स ले लें उनके बीच में आपके पास हमेशा रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। दैट मीन्स कि ये जो सब इंटरवल आपने कंसीडर किया है r माइनस 1 by n टू r by n, इन दिस इंटरवल वी विल हैव रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स। तो अगर आपको फंक्शन की इस इंटरवल में फिर लोअर बाउंड या अपर बाउंड निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं इस इंटरवल में। जहाँ पर फंक्शन आपका रैशनल है वहाँ वैल्यू आ रही है 0 और जो इरेशनल है वहाँ वैल्यू आ रही है 1, और 0 और 1 में से आपके पास लोअर वैल्यू कौन सी है 0 और अपर वैल्यू कौन सी है हमारे पास 1। तो इसलिए हमारे पास जो फंक्शन की लोअर बाउंड है यानी कि स्मॉल mr, जैसे हम कहें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन f इन द इंटरवल r माइनस 1 by n टू r by n या rth सब इंटरवल जो आप लेके चल रहे हो, सो दैट विल बी 0। सेम वे में कैपिटल MR which is our least upper bound of f, that will comes out to be equal to 1. ठीक है। Now what will be the lower sum? So lower sum of the function that will be summation MR into delta R. डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास 1 by n है। टोटल हमारे पास जो इंटरवल्स हैं सब इंटरवल वो n सब इंटरवल्स हैं, r वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड फॉर ईच mr इज इक्वल टू 0, क्योंकि हर इंटरवल में आपके पास फंक्शंस की यही लोअर बाउंड और अपर बाउंड आएंगी बिकॉज वी हैव ओनली 2 वैल्यूज इन ईच इंटरवल ऑफ द फंक्शन। तो इसलिए ये 0 इंटू 1 by n, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n 0 multiplied by 1 by n which will be summation of 0 and that will comes out to be equal to 0. तो ये आपके पास आ रहा है लोअर सम। इन द सेम वे वी विल फाइंड द अपर सम। सो अपर सम यानी कि UFP, दिस विल बी समेशन ऑफ कैपिटल MR इंटू डेल्टा R वेरीज फ्रॉम 1 to n, एंड क्योंकि कैपिटल MR की वैल्यू हमने निकाली थी 1, so this will be equal to summation of 1 into 1 by n, r varies from 1 to n, but इस समेशन के अंदर आपका r है नहीं, 1 by n हमारा बाहर आ जाएगा। you will write it as 1 by n into summation of 1, r varies from 1 to n and summation 1 will be means we are adding 1 n times। हर रिजल्ट्स में आपके पास 1 ही आएगा, 1 plus 1 plus 1 up to n times। तो n टाइम्स में 1 ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी n, and so this comes out to be equal to 1।
So that means lower sum is 0 and upper sum is 1. And therefore, if you have to find lower integral and upper integral, so lower integral हमारे पास 0 to 1 f dx, this will be the least upper bound of lower sums. यही था हमारे पास. एंड लोअर सम्स तो आपकी हर वैल्यू की जो है लोअर सम वो क्या आ रही है 0, तो उनकी फिर लीस्ट अपर बाउंड भी इसका मतलब 0 होगी. या आप दूसरे तरह से भी सोच सकते हो, मीन्स यू हैव टू टेक द लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट n उसमें है ही नहीं, 0 वैल्यू है. सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. द सेम वे 0 to 1 ये अपर इंटेग्रल अगर आपको लेना है, सो दिस विल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम्स, बट अपर सम फॉर ऑल वैल्यूज आर इक्वल टू 1 है ये सारी वैल्यूज के लिए. तो इसलिए 1 की जब आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कंसीडर करोगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, या n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1. सो दैट मीन्स कि लोअर इंटेग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर इंटेग्रल. दिस इज योर अपर इंटेग्रल नॉट इक्वल टू लोअर इंटेग्रल, and so function f is not Riemann integrable. So this proves our this example. Next we will do one more question. So let us prove that function f defined by fx is equal to x square. फंक्शन आपको ये भी एग्जांपल हम ले लेते हैं. फंक्शन fx is defined by x square on the interval is 0 to a, is integrable on 0a. ये हमें दिखाना है. and we have to prove that integral from 0 to a x square dx will comes out to be equal to a cube upon 3. डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आप देखोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, आप वेरीफाई कर सकते हो. तो फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इंटरवल आपका है 0 to a. इसकी पार्टीशन कंसीडर करोगे जैसे अभी पिछले एग्जांपल में किया था. लेंथ ऑफ द इंटरवल आपके पास a है, इसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो लेंथ ऑफ ईच sub interval will be a by n. So we will consider the partition P of the interval as 0, a by n, 2a upon n, r minus 1 into a by n, r a by n, and n a upon n यानी कि a. So this is our rth सब इंटरवल. और इस सब इंटरवल में हम फंक्शंस की वैल्यू निकालें, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड. लोअर बाउंड क्या होगी, फंक्शन कैसा है, सबसे पहले आप ये चेक किया करो कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन में होगा कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर आप x को डिक्रीज करेंगे तो फंक्शन भी डिक्रीज होगा. सो हेयर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो इस इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास जो फंक्शन की जो लोअर बाउंड आएगी वो लोअर वैल्यू पर आएगी और अपर बाउंड आपकी अपर वैल्यू पर, जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा. तो हेयर फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन. देयरफॉर स्मॉल एम आर यानी कि लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन द इंटरवल r minus 1 into a by n to r a by n will be, ये लोअर वैल्यू है हमारे पास तो इसके ऊपर आएगी. फंक्शन एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर, सो वी विल रिप्लेस एक्स बाय r minus 1 into a by n. so therefore greatest lower bound is r minus 1 का स्क्वायर a square upon n square. in the same way कैपिटल mr यानी कि least upper bound of f in this interval r minus 1 into a by n to r a by n इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है r a by n पर. सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू r square a square upon
n square. Now we have to find the lower sum. So lower sum LFP is given by summation MR into delta R. R varies from 1 to n. That means you will have summation of MR की वैल्यू डाल दें, R minus 1 का होल स्क्वायर, A square upon n square. And what is delta R here? Delta R is the length of this Rth सब इंटरवल, और हर इंटरवल की लेंथ सेम है. हमने a by n हर इंटरवल की लेंथ ली थी. इन दोनों का भी आप डिफरेंस लोगे तो a by n आएगा. सो डेल्टा R इज a by n. तो उस वैल्यू को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं. दिस इज a by n एंड R वेरीज फ्रॉम 1 to n. तो इसमें से आपका ये a क्यूब अपॉन n क्यूब समेशन से बाहर आ जाएगा. रिमेनिंग है समेशन R माइनस 1 का होल स्क्वायर. R varies from 1 to n. Now, this is R minus 1. R minus 1 whole square. इसको हम खोलें. सो यू आर गेटिंग a क्यूब अपॉन n क्यूब, और इसमें आप r की वैल्यू डालोगे. r इज इक्वल टू 1 से आपके पास ये आ गया 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर up to n minus 1 whole square. That means we are having sum of the squares of first n minus 1 natural numbers. तो फार्मूला हम यूज कर दें. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला है उसमें आप n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दोगे. तो a क्यूब अपॉन n क्यूब इंटू में अब यहाँ फार्मूला यूज करना है. सबसे पहले बताइए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होता है. दैट इज गिवन बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. This is sum of the squares of first n natural number, means summation n square is equal to this. ये आपके पास रिजल्ट होता है फार्मूला. इस फार्मूले में हम n को अगर n माइनस 1 से रिप्लेस करें तो हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स आ जाएगा. दैट मीन्स यू आर गेटिंग n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 6. इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नीचे n क्यूब है, n क्यूब से आप डिवाइड करोगे दूसरी साइड पर. हम दोबारा लिखते हैं इस वैल्यू को. सो वी वर हैविंग LFP आपने निकाला था. ये LFP कम्स आउट टू बी इक्वल टू a क्यूब अपॉन n क्यूब इंटू n माइनस 1 इंटू n into 2n minus 1 and divided by 6, and this can be now written as a cube upon 6 into में n क्यूब नीचे है, इसमें हर एक को डिवाइड कर दीजिए. 1 minus 1 by n, ये n by n कैंसिल हो जाएगा एंड 2 minus 1 by n. ये हमारे पास आ गया लोअर सम. एंड लोअर सम से अगर हमें फिर लोअर इंटेग्रल निकालना है, पहले हम लोअर इंटेग्रल निकाल के दिखा देते हैं. यहाँ पर लोअर इंटेग्रल इंटरवल क्या दिया हुआ था हमें यहाँ पर 0 to a. दैट मीन्स 0 to a f dx. f की वैल्यू आपकी x स्क्वायर थी. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट. लोअर इंटेग्रल की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी. लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द लोअर सम. और लोअर सम हमने ये निकाला है. So this can be written as equal to limit n tends to infinity a cube by 6 into 1 minus 1 by n into 1 into 2 minus 1 by n. And if you take n tends to infinity, so 1 by n will become 0, and therefore you into 1 into 2, that means a cube upon 3. So we will have lower integral comes out to be equal to a cube by 3. So now comes to upper sum and then upper integral. So upper sum UFP, this will be equal to, सबसे पहले हम upper sum निकालेंगे.
This is given by a summation capital MR into delta R. R varies from 1 to n. एंड कैपिटल MR की वैल्यू हमने लिखी थी R स्क्वायर A square upon n square. R varies from 1 to n and delta R was A by n. So from here we will get A cube upon n cube common, and this is summation of R square. R varies from 1 to n, and this is your sum of the squares of first n natural numbers, as it will be A cube upon n cube. हम sum of the squares की वैल्यू डाल देंगे n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, and this can be written as A cube by 6 into n cube से हम divide करेंगे, तो आ गया 1 into 1 plus 1 by n into 2 plus 1 upon n. So this is our upper sum. So next we will find upper integral. So upper integral will be 0 to a f dx. This will be upper integral, हम upper sum से निकालते हैं. So that is your greatest lower bound of upper sums, means limit n tends to infinity of the upper sum. upper sum की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे a cube by 6 into 1 into 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n, and then taking the limit we will have a cube by 6 into 1 into 2, that means a cube upon 3. And so we see from here that this upper integral of fx यानी कि x square भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, and ये lower integral f dx, this comes out both are equal and equal to a cube by 3, and therefore we will have integral 0 to a x square dx simply is a cube by 3, and this proves our result. And I hope you understood well. So this is all for today. Thanks. In the next video we will do some more examples. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिमूव ऑल योर डाउट्स. थैंक्स.